आई यूज्ड टू थिंक कि गुरुजी आपसे क्या चीज़ें मांगनी चाहिए? What are the things that would be the right things to ask from you? So, then sort of the thought came कि God तो eternal है, गुरुजी तो eternal है. So अब एक चीज़ तो होगी eternal और कुछ चीज़ होगी temporary. So I was like, okay, तो गुरुजी अगर आप eternal हो, तो eternal से अगर हम कुछ टेम्पररी चीज़ माँगेंगे तो वो थोड़ी छोटी चीज़ हो जाएगी. So I was like कि maybe the right things to ask from the eternal force could be some eternal things. So then what happened was कि I was like let me think कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं which are timeless things, right? Which are eternal things. And we can all think about that, right? Like if we take a minute to think about it, what are some things which are timeless? So, love could be eternal, like how people say love is eternal. Truth could be eternal. We worship Satnam. Uh, Light could be eternal. Divine light. Guruji's divine light. What else could be eternal? Uh, Forgiveness could be eternal. If you truly forgive and love somebody, that could be forever, right? And then learnings could be eternal, right? When we learn something, those true learnings, when we receive them, those learnings can be eternal too. And then Charno ki preeti could be eternal, right? Raj na chahu, Mukut na chahu, Manpreet Charan Kamlare. So even Charno ki preeti is something that could be eternal, that is hair, uh, and in places even after we leave our body on earth. So wherever our soul moves, गुरुजी जो लाइट है वो तो हर जगह पे ही है यूनिवर्स में. So even that force could be eternal. So I was like, okay, these 6 or 7 things seem to be eternal, and things that are not these 6 or 7 are probably finite. सो बेसिकली इसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो गुरुजी से क्या माँगनी? वो तो लाइक फाइनाइट चीज़ है. और हम अकाल पुरख से अगर हम फाइनाइट चीज़ें माँगेंगे तो क्या क्या फ़ायदा उसका? मतलब फिर तो आप शॉर्ट चेंज कर देते हो किसी चीज़ को ना. तो आई वाज़ लाइक कि गुरुजी आपसे यही वाली चीज़ें माँगूँगा सिर्फ़. सो देन व्हाट हैपेंड कि आई वुड गेट लाइक वेरी, मैं बहुत बहुत सोचता था मैं इन चीज़ों के बारे में. आई वुड लाइक कि गुरुजी आज सत्संग में आई एम गोइंग टू आस्क यू lessons about love. So today I'm going to ask you about light. Today I'm going to ask you about Charnuki Preeti. And what started happening was कि गुरुजी ने एंड कंटिन्यूज टू कि ना मतलब एक एक चीज के बारे में गुरुजी ने लाइफ में इतना ब्यूटीफुल लर्निंग्स दी, इतना गुरुजी ने ब्यूटीफुल समझाया है कि which continues to like grow for me the way I understand about Guruji, the way Guruji has absolutely like transformed my life. Uh, I think my life has taken a 180-degree U-turn. I would say in like last 3 years or so, uh, since I've been coming to Guruji in this lifetime. Like completely, like you would not even recognize the person um, I was like a few years ago.
So, uh, in some, Guruji has allowed me to share satsangs before, and there are a couple of satsangs also on YouTube where I've shared about forgiveness practice, where I've shared about light, where I've shared about some other topics. So I'd love to talk about learnings, learnings today. So how even learnings are eternal. Uh, so अगर आप सोचें, अगर आप वर्ड जो सिख सिख वर्ड है, सिख वर्ड का अगर आप मतलब देखेंगे तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज जो सीखता है, somebody who is a student. So essentially that mentality of being a student is a very highly respected, is a very important virtue uh, in Guruji's Darbar. कि अगर हम एक स्टूडेंट के तरीके से जाते हैं परमात्मा के पास, अपना ओपन माइंड होके जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, देन व्हाट हैज बीन माय एक्सपीरियंस कि गुरुजी यू नो लर्निंग्स पे लर्निंग्स देते हैं, देन इट्स अप टू अस हाउ मच वी कैन रिसीव, how much more we can learn from what Guruji continues to teach us. So I'll give you a couple of uh, examples and satsangs where I failed miserably, and how you know, like even if you go to a school, right? We're all students of Guruji. We always fail sometimes. We fail in a class test or we fail in an exam, and then we learn something. And even Guruji ne bola tha ki uh, how key pain is a way key, a lot of our spiritual progress happens in pain. uh, so pain can be a very good teacher in our life. So I'll share a couple of examples where I've failed, and how keeping an open mind, the learnings that have happened have absolutely changed, and grown a lot of the things I've experienced. So the first satsang I'll share is uh, maybe about 2.5 years ago. I was in California. I'm in California. तो क्या हुआ कि I was, I grew up in a Hindu Punjabi family, and like those growing up, we had very little understanding about, uh, Sri Guru Granth Sahib Ji. Very little. Like even though I would go to the Gurdwara, and the Gurdwara was right next to where I lived in Delhi, but it was like awareness nahi tha, kuch understanding bhi nahi thi. And so as I started to come to Guruji satsang, तो होता क्या था कि आई वुड अटेंड द सत्संग, एंड कभी कभी ना मन में ऐसे होता था कि गुरुजी यू नो कि ओम नमः शिवाय ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, ज्यादा गुरबानी क्यों हो रही है, एंड इट वुड बी लाइक इग्नोरेंस, राइट? क्योंकि पता नहीं था इसके बारे में इतना, इट वाज नॉट इवन लाइक, पता था कि इट इज इम्पोर्टेंट, बट इतना ज्यादा नहीं पता था कि जैसे तुर्की बानी है, कि इट्स लाइक द मोस्ट सेक्रेड ऑफ टेक्स्ट, एंड गुरुजी ने तो एक संगत को ये भी बोला है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे ऊंचे भगवान है। तो ये अवेयरनेस तो थी नहीं। तो मन में तो गुरुजी को मैं बोल रहा हूँ कि गुरुजी की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुत ज्यादा सुनने को होता है, शिव जी के भजन कम के होते हैं। सो आई वाज जस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग इन माय माइंड, एंड स्टिल इट वाज आउट ऑफ इनोसेंस, इसमें कुछ, आई डोंट थिंक कोई एरोगेंस या फिर कुछ इस तरीके का थॉट था, बट इट वाज काइंड ऑफ की क्यूरियोसिटी प्लस इनोसेंस प्लस some of that, right? तो कुछ, but as those thoughts were growing, I was also kind of bordering towards a bit of like arrogance कि तो वो कुछ
चला, 2-3 हफ्ते चला वो वाला थॉट कि गुरुजी ज्यादा शिव जी की भक्ति क्यों नहीं होती, ज्यादा सिख रिलीजन के रिलेटेड ज्यादा चीजें ऐसे थी। तो वो जैसे एक एक्सपीरियंस था। तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि गुरुजी एक ड्रीम दर्शन अ, देते हैं, और गुरुजी अ, बड़े मंदिर में है, और संगत बड़े मंदिर में लाइन में खड़े हुए हैं, एंड आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग इन द लाइन। और ना मूल मंत्र स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही मूल मंत्र स्टार्ट होते हैं ना, सब संगत जैसे गर्दन झुका के रिस्पेक्टफुली खड़े होते हैं, एंड मैं भी खड़ा होता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एरोगेंस में थोड़ा खड़ा होता हूँ, लाइक आई एम नॉट, जैसे ठीक से झुकता भी नहीं हूँ। एंड देन क्या होता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी बड़े मंदिर में होते हैं, एंड देन जैसे ही मूल मंत्र स्टार्ट होते हैं, गुरुजी एकदम मेरे पास आके गुस्से में खड़े होते हैं, एंड गुरुजी लुक्स एट मी इन एंगर, एंड गुरुजी गुस्से से मुझे बोलते हैं कि तू झुकेगा नहीं, यू नो। तो मेरी तो ड्रीम में हवा निकल जाती है। मुझे लगता है कि और मैं फिर गुरुजी को बोलता हूँ, गुरुजी मैं झुका तो हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंस कि गुरुजी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है बड़े मंदिर में। तो गुरुजी आई कांटेक्ट करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, एंड देन गुरुजी ना अपने हार्ट से मेरे हार्ट को टच करते हैं, which goes on for about 30 seconds, pin drop silence. एंड देन गुरुजी मेरे कान में कुछ किसी और भाषा में विस्पर करते हैं, एंड देन मुझे कुछ ऐसी ड्रीम में अंडरस्टैंडिंग होती है कि गुरुजी समझा रहे हैं कि अगर डिफरेंट रिलीजन्स की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप गुरबानी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। you know like you have to respect every faith, you have to respect the holy scriptures. तो मैं उठा, मेरी तो बैंड बज गई, मेरे को लगा तो लाइफ खत्म, गुरुजी परमात्मा ने गुस्से से देख लिया, तो लाइफ में बचा ही क्या है। तो अब क्या होता है कि अब देखो, ये फेलियर की हम बात कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ फेलियर एंड दिस वाज पेन, बहुत ज्यादा पेन था ये। अब हुआ क्या कि थोड़े दिनों बाद एकदम से क्या मैजिक होना शुरू हो गया कि अपने आप ना जैसे मन में इतना बानी का जैसे प्यार आना शुरू हो गया। ऐसा होना शुरू हो गया कि गुरुजी सिर्फ गुरबानी ही सुननी है और कुछ सुनना ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि लाइक दिन में 4-4 5-5 घंटे गुरबानी मैं चला रहा हूँ नॉन स्टॉप। घर में स्पीकर्स में गुरबानी चल रही है, गाड़ी में गुरबानी चल रही है, सत्संग में अगर गुरबानी के अलावा और कुछ चलता है तो लगता है यार कुछ और भी क्यों चल रहा है। तो एकदम जैसे एज इफ की हफ्ते के अंदर तो पूरी लाइफ ही जैसे चेंज हो गई। पहले में क्या थॉट्स थे मन में और अब एकदम से क्या हो गए। सो दैट वाज लाइक सो ब्यूटीफुल। तो आई वांटेड टू शेयर कि हाउ गुरुजी ने कैसे एकदम लाइफ की ये ट्रैजेक्टरी को एकदम चेंज किया। एकदम जैसे ट्रेन उल्टी डायरेक्शन में जा रही होती है और गुरुजी उसको एकदम सीधा कर देते हैं। तो इस चीज में मैं ऐड करूंगा कि एक तो गुरुजी तो बख्शनहार है। गुरुजी ने तो देखो गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी ने इस चीज के बारे में मार्गदर्शन किया, राइट? अब सोचो इसके साथ इम्पोर्टेंट जो है कि हम ओपन माइंड के साथ भी जाते हैं गुरुजी के पास, राइट? इफ वी रिमेन स्टबर्न, इफ वी रिमेन क्लोज माइंडेड, तो दैट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। क्योंकि अगर आपको परमात्मा अगर आपको कोई चीज बता रहे हैं और आप तब भी अगर स्टबर्न हो रहे हो, आई थिंक दैट्स अ वेरी बहुत नुकसान हो रहा है उसमें फिर आपका ना। सो फॉर मी दैट वाज लाइक वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव सत्संग की हाउ एक तो हमको पेन से डरना नहीं है, पेन में इतना लर्निंग हो रही होती है, एंड
we really grow a lot out of it. तो इसी को मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. लास्ट ईयर गुरु नानक देव जी इज बर्थडे. अभी जैसे लास्ट वीक थे, तो सिमिलरली लास्ट ईयर गुरु नानक देव जी का बर्थडे. सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू पार्टिसिपेट इन अ सत्संग ऑन गुरु नानक देव जी's बर्थडे. क्या होता है कि आफ्टर द सत्संग मुझे उस रात को ड्रीम आता है, ड्रीम दर्शन, कि गुरु नानक देव जी दर्शन में आते हैं और गुरु नानक देव जी मूल मंत्र का मतलब समझाते हैं. सो वो वर्ड बाय वर्ड, अंग बाय अंग मूल मंत्र का मतलब समझा रहे हैं. और वो ऐसे जैसे घंटों की मूवी चल रही होती है, आपको एक एक लाइफ की एक एक एग्जाम्पल में मतलब समझा रहे हैं. वो एक मतलब मैं आपको जो मुझे याद है सबसे ज्यादा वो मैं शेयर कर सकता हूँ, कि उन्होंने बोला कि जो गुर प्रसाद वर्ड है उसका मतलब उन्होंने कैसे समझाया, कि आप सोचिए कि कोई बहुत आंधी चल रही है, देयर इज अ बिग हरिकेन गोइंग ऑन, और ना, एंड यू आर अंडर अ ट्री. तो जब गुर प्रसाद होता है तो आपको आंधी की एक बूंद भी नहीं छूती. दैट इज गुर प्रसाद. सो तो ये ड्रीम दर्शन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दिया. तो आप देखिए कि 1 साल 1.5 साल पहले बातें क्या हो रही थी, और आज मतलब परमात्मा ने खुद आके मूल मंत्रा के बारे में बात समझाया. जो एक तरफ डिसरिस्पेक्ट हो रही थी और आज वो सिखा रहे हैं. तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, कि एक तो वी आर स्टूडेंट्स. Second, Guruji is Bakshanhar, right? He's forgiving us for these जो हम सोचते रहते हैं गलत, कुछ भी सोचते हैं वो माफ करते हैं हमें. और तीसरी चीज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कॉन्स्टेंटली बी अ स्टूडेंट, कि हम जब सीखते हैं तो लाइफ में इतनी मैजिकल चीजें आगे होती हैं, दैट इज जस्ट यू नो unbelievably beautiful. So that was the first experience. I'll share one more experience about uh, learnings, right? So अब क्या होता है कि हम ना humans हैं, we are all we are form of animals, right? Homo sapiens हैं, just like many other animals. तो हम कभी कभी because of our survival biology, if you read more about it, evolutionary biology, क्या होता है ना कि ह्यूमंस ऑफन टाइम्स उनका ब्रेन इस तरह हमारा डिजाइन होता है कि हमें लगता है कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं. दैट इज द वे ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड, दैट इज द वे मोस्ट एनिमल्स आर डिजाइंड. तो दैट इज मोर लाइक अ प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और जो भी रीजंस है. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वी हैव टू गो आउट ऑफ आवर वे टू बी ओपन फॉर फीडबैक, टू एक्चुअली लर्न कि हम क्या गलत कर रहे हैं, to actually ask for feedback, to look at our blind spots. Look at the example of blind spots. कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो, in the rear view mirror, there are spots in the car that you cannot see. So in the same way, हमारी अपनी personality के बारे में there are many aspects that we cannot even observe ourselves. But somebody who's above us, Guruji can look at our entire personality. He is अंतर्यामी. वो हमारी एक एक अंदर की बात को पहचानते हैं. तो he knows the entirety of us. जो हमें नजर भी नहीं आती अपने बारे में, गुरुजी को वो चीजें सारी पता है हमारे बारे में. हमारी पास्ट लाइफ, हमारा टेंडेंसीज, हमारी अनकॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस, he knows all of that things. तो अब क्या होता है कि अब इसमें I'd like to share कि for last 3 years, every night, almost every night before sleeping, मैं गुरुजी से ना 2 सवाल तो पूछता हूँ. पहला सवाल मैं पूछता हूँ कि गुरुजी, आज मैंने क्या क्या गलत किया, प्लीज टेल मी कि आज मैंने क्या क्या चीजें गलत करी. एंड सेकेंडली, प्लीज टेल मी लाइक ऐसी वो ऐसी क्या चीजें थी जो जो मुझे लगा कि सही है पर एक्चुअली गलत थी. लाइक हम कभी कभी
गलत चीज कर देते हैं और हमें लगता है कि बहुत हम अच्छी चीज कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना अनजाने में हम गलतियां कर देते हैं. सो every night I would ask Guruji these two things. Ki Guruji, please give me feedback on what I did wrong today. And secondly, what are the things that I did wrong, but I thought I did like a good job, but were actually wrong. So मैं दो चीजें most nights Guruji से सोने से पहले पूछता हूँ. And I also like tell Guruji कि Guruji I want tough love. कि देखो लव भी दो तरीके का होता है. एक तो होता है mother's love, right, which is a very gentle, very sweet love, बहुत पैम्परिंग लव होता है. And then there is the father's love, which is like a very tough kind of a love, which actually makes us stronger. And both are like love. ऐसा नहीं आप बोल सकते कि father का love is not love, right? It's both are different kinds of love. तो मैं गुरुजी को बोलता हूँ गुरुजी आई वांट टफ लव. मुझे मुझे लाइक मुझे डांट खानी है आपसे. मुझे ना थोड़ा टफ लव, मुझे टफ लव चाहिए. सो आई आस्क हिम स्पेसिफिकली फॉर टफ लव. एंड विद दैट आई आस्क हिम कि मुझे फीडबैक भी हो और क्या गलतियां करी हैं वो भी हो. सो आई वुड आस्क देम वेरी स्पेसिफिकली. अब होता क्या है कि लाइक आई वाज सेइंग राइट, इटर्नल एंड टेम्पररी. हम जो मांगते हैं वो तो मिलता है गुरुजी से. आप इटर्नल मांगोगे तो गुरुजी इटर्नल चीज देते हैं. अगर आप फाइनाइट चीज मांगोगे तो फाइनाइट चीज मिलती है. तो अब इवन इन द होली बाइबल जीसस सेज द सेम थिंग. ही सेज आस्क एंड यू शैल रिसीव इट. तो अब जो चीज मांगोगे वो चीज तो मिल जाती है. तो फीडबैक मांगोगे तो फीडबैक मिलेगा. तो आई स्टार्टेड आस्किंग गुरुजी फॉर फीडबैक कि गुरुजी क्या क्या गलतियां हो रही है डे बाय डे. तो होना क्या शुरू हुआ कि रोज ही कुछ ना कुछ फीडबैक मिलना शुरू हुआ. लाइक किसी दिन ये हो रहा है कि तुमने उससे ऐसे क्यों बात करी. किसी दिन हो रहा है कि ये क्यों किया. किसी दिन था कि हेल्थ का ऐसे ध्यान रखना है. एंड यू नो दे वुड कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट. समटाइम्स दे वुड कम इन अ ड्रीम. Sometimes they would just kind of come as an idea. Sometimes they would come, you would read a book and suddenly a line would just connect to you. You're like, wow यार ये तो मैंने किया था कल. तो हुआ क्या कि अब धीरे धीरे ना over these 3 years रोज ही कुछ ना कुछ learning मिल रही है. So then what happened is that I started to write down all of these learnings in a in a in a computer file. जैसे Apple Notes होता है, notes file, right? So I'm just writing down these learnings on my phone as they're coming. जैसे ही idea आता है, I immediately write it down. कि कल उससे ऐसे क्यों बात करी, you know, don't say these things, don't talk like that, don't wait that long to respond. जो भी ideas आ रहे हैं, right? So I'm just writing those down across categories. तो अब सोचो, अब 3 साल से अगर आप कोई चीज फीडबैक अगर इकट्ठा कर रहे हो तो उसके तो हजारों फीडबैक हो गए हैं. लाइक 3 साल में 1000 दिन तो है ही. तो इतने सारे वो पॉइंट्स इकट्ठे हो गए उस फीडबैक के कि हजारों चीजें हैं जो गलत हम करते हैं, राइट. हमें लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं पर हो रहे हैं बैकग्राउंड में हजारों गलतियां. तो अब होना क्या शुरू हुआ कि मैं ना आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू दैट लिस्ट विद मोर एंड मोर फोकस. मुझे लगा कि ये तो इम्पोर्टेंट लिस्ट है जो गलतियां हो रही हैं. So let me be more mindful of these things. So then what happened कि I started organizing these learnings in a slideshow. जैसे PowerPoint होता है ना, तो मैंने उनका learnings का एक slideshow बनाया and one learning on one slide. कि you know हर चीज के बारे में एक एक learning और per slide, and then I would try to review that PowerPoint like once a week. कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, what tendencies I have, you know, all sorts of गलतियां, right? हम सबके अंदर है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. Those are just 5. I think कम से कम 50 होंगी ऐसी. और so like so वो चीजों के बारे में analysis थोड़ा और करना शुरू किया. And I would try to like see that presentation once a week to kind of remember myself and not to repeat those same things again, because गुरुजी ने पहले like अगर गुरुजी ने बता दिया कि ये गलतियां हैं then repeat नहीं होनी चाहिए फिर वो. because अगर फिर भी repeat हम कर रहे हैं तो हमारी गलती है. So then what happens कि
अब ये प्रोसेस चल रही है, राइट, हैज बीन कंटिन्यूइंग एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर सम टाइम. अब क्या होता है कि सच अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट. सो क्या होता है, थोड़े दिन बाद मुझे ड्रीम दर्शन आता है कि मैं गुरु जी के मंदिर में हूँ, बहुत सारी संगत बैठी है, और गुरु जी, सोचो कि हर संगत के सामने ना एक गुरु जी की एक छोटी सी एक मूर्ति है, एंड ईच संगत इज टॉकिंग टू गुरु जी's मूर्ति वन ऑन वन. हर संगत के पास एक एक गुरु जी की मूर्ति है, वन डायरेक्टली ना. तो क्या होता है, उस गुरु जी के मंदिर में ना एक एक महापुरुष है इंडिया के. ही इज अ वेरी पॉपुलर सदगुरु, वेरी पॉपुलर गुरु. ही इज इन द ड्रीम इन गुरु जी's टेम्पल, एंड उनसे ना मेरी बात हो रही है, एंड हम गुरु जी के बारे में बात कर रहे हैं. एंड देन आई आस्क हिम कि ना मैं गुरुजी से अपने फीडबैक मांगता हूँ, तो गुरुजी मैसेजेस देते हैं. फिर ना उसको मैंने स्लाइड शो बनाई हुई है, तो मैं उनको वो स्लाइड शो ड्रीम में दिखा रहा होता हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ना. तो आई एम शोइंग हिम द स्लाइड शो, एंड देन आई एम आस्किंग हिम कि अच्छा, मैं तो ऐसे रिव्यू करता हूँ, आप कैसे करते हैं. तो वो फिर मुझे अपना रिव्यू करने का तरीका बताते हैं, फिर वो मुझे अपना फीडबैक का तरीका बताते हैं कि वो कैसे अपनी लर्निंग्स रिव्यू करते हैं. वो मुझे बोलते हैं कि वो जब भी खाना खाने के बाद बैठते हैं वज्रासन टाइप्स में, तो वो अपने मुंह में सौंफ रखते हैं, या फिर इलायची रखते हैं, एंड देन ही थिंक्स अबाउट हिज डे इन अ डीप way for like about 20 minutes, and he analyzes his day and his mistakes on all these things. तो सोचो कि गुरुजी तो महाशिव है, देवों के देव महादेव है, राइट. तो जितने भी महापुरुष गुरु जितने भी हैं, वो सब गुरुजी के स्टूडेंट्स हैं. हम भी गुरुजी के स्टूडेंट्स हैं. तो सब लोग गुरुजी से लर्निंग्स रिसीव कर रहे हैं. गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो तो हमारी एक एक बारीकी जानते हैं, क्या क्या अभी है, आना है. तो ही इज ऑल्सो टेलिंग अस कि क्या हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि गलतियां ना हो आगे चल के. So that was so beautiful, right? That was again a confirmation कि कैसे we can be students again. I'll share one more very beautiful uh, satsang about learning and being a student. So this happened about on the first day of Navratras, actually this year, I think last month. So Lord Shiva, शिवजी ड्रीम दर्शन देते हैं. एंड क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो पार्ट कर रहा होता है, एंड दैट पर्सन ट्रांसफॉर्म्स इनटू लॉर्ड शिवा. और लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी एक डायमंड जैसी थर्ड आई होती है. शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है, एंड शिव जी इज अ वेरी वॉरियर लाइक फॉर्म. बड़े बड़े मसल्स हैं शिव जी के, और जैसे पूरी धरती हिलनी शुरू हो जाती है. ही इज सो पावरफुल. फिर क्या होता है, शिव जी कुछ बोलते हैं. शिव जी बोलते हैं, जो मुझे ऊपर वो है जो मुझे जानता है, उससे ऊपर वो है जिसे मैं जानता हूं, और सबसे ऊपर वो है जिसे कुछ नहीं पता, और वो उसके पास जाता है जिसे सब पता है. सो आई जस्ट रिपीट. ऊपर वो है जो मुझे जानता है, उससे ऊपर वो है जिसे मैं जानता हूं, और सबसे ऊपर वो है जिसे कुछ नहीं पता, और वो उसके पास जाता है जिसे सब पता है. राइट. सो दैट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड इज द सेम पॉइंट, शिव जी जो हमें सिखा रहे हैं कि when we are a student, that's a very high place, very very important place, to be. The more student we are, that's a very important thing. The more sick we can be, that's a very very important thing. uh, yeah, and I'll just share one more satsang, which is again related. uh, so about 2 months ago, uh,
this is again related to like opening our hearts to Guruji, opening our minds. So about 2 months ago, uh, I received a dream darshan outside Bade Mandir, and they were like, mm, there's there were many sangat. There was one sangat who was a Jewish girl, who was from my college, and she had come to Bade Mandir for the first time. अब Jewish जो लोग होते हैं उनको तो they worship the Old Testament and उनको शिव जी के बारे में ऐसे डायरेक्टली नहीं पता. सो क्या होता है कि वो लड़की है, वो बहुत सारे रूल्स बना के आती है गुरुजी के मंदिर में. गुरुजी को ऐसे वर्शिप करना है, ऐसे बात करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है. Like how we sometimes have a tendency to make a lot of rules, क्योंकि गुरुजी ने तो कोई ऐसे रूल बनाए नहीं है, राइट. इट्स वेरी वेरी सिंपल. इट्स जस्ट वन ऑन वन कनेक्शन एंड इट्स वेरी सिंपल. तो वो लड़की होती है ड्रीम में एंड शी इज लाइक वेरी एंग्शियस कि ओ मेरी लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं गुरुजी से ऐसे ऐसे करना है, ये बात करनी है, वो करनी है. सो क्या होता है कि बड़े मंदिर के बाहर शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, हनुमान जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है. एंड देन उससे ना बात करते करते ना, like like I'm sharing a prayer with her. I'm saying ki just say this prayer, and that's about it. Like you don't have to say any other prayer. So I'll share the prayer that I was sharing with her. uh, I was telling her, just say the prayer, dear light, enter my heart. So dear light, enter my heart. So that's about it. It's a if you think about it, we just open our heart and we invite the light, and that's about it. Like उससे ज्यादा तो उसमें ही सब कुछ मिल जाता है, उसमें ही सारा कुछ हो जाता है. And as we open our heart fully, we can be like, we can be open minded, we can be open hearted, we can receive. And I think that's a pretty beautiful place. uh, it's a very sweet related satsang. So if you some of you read Hanuman Chalisa, at the very last line of Hanuman Chalisa, there is a line, Kije Nath Hriday Ma Dera. So I really like that line. तो होता क्या था कि अराउंड 1.5 साल पहले मैं जब भी सत्संग में जाता जाता था और जाता हूँ, मैं मत्था टेकते हुए ना गुरु जी को बोलता हूँ, कीजे नाथ हृदय मां डेरा. और जैसे कीजे नाथ हृदय मां डेरा. अब क्या होता है कि which if you translate, it means, oh Lord, please enter my heart, which is very similar to dear light, enter my heart, right? So कीजे नाथ हृदय मां डेरा. अब होता क्या है कि ये चल रहा है, राइट, 2-3 महीने हो रहा है, मैं सत्संग जाते हुए गुरु जी को बोल रहा हूँ, कीजे नाथ हृदय मां डेरा. अब गुरु जी एक ड्रीम दर्शन अ, देते हैं, और गुरु जी का सत्संग चल रहा है, गुरु जी गद्दी पे बैठे हैं, और मैं गुरु जी के पास जाता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ, जैसे पूरा जमीन पे लंबा लेट के ना. और मैं जैसे ही जैसे ही मैं नीचे मत्था टेकता हूँ, मैं मन में बोलता हूँ ड्रीम में, कीजे नाथ हृदय मां डेरा, द सेम लाइन. एंड देन गुरुजी स्माइल्स एंड गुरुजी मेरे को जैसे थपथपी देते हैं बैक पे. एंड देन मैं उठता हूँ, एंड फॉर सम रीजन मैं बहुत ड्रीम में रोना शुरू हो जाता हूँ. I really start crying. I don't know गुरुजी ने क्या बटन्स प्रेस किए हार्ट के, बट आई स्टार्ट क्राइंग. एंड मैं उठता हूँ, मेरे पिलोस पे आंसू टपक रहे होते हैं. लाइक आई जनरली डोंट क्राई, बट आई डोंट नो क्या हुआ, बट आई वोक अप लाइक क्राइंग इन टीयर्स. सो सी, लाइक गुरुजी तो हमारी एक एक अंदर की एक एक मिलीमीटर की एक एक बात को पहचानते हैं, हम क्या क्या उनसे बात करते हैं, चलते फिरते सोचते, राइट. ही hears everything. So it was such a beautiful example of that. So yeah, Jai Guruji. I think I've already taken like about 30 minutes.
Thank you very much. Shukrana, Guruji. Thank you, Uncle. If you'd like to share a few more satsangs, we have time. I'll leave it up to you. Otherwise, Okay, let me think for a second. So I think I can kind of repeat the forgiveness practice if some of you might not have heard uh, the practice. The reason I'm sharing is because I feel like that has absolutely like Guruji ने मतलब absolutely मतलब life transform हो गई है thanks to the forgiveness. And I would just share very briefly what that practice uh, has, how Guruji has actually uh, helped me understand more about the practice, and how that is uh, I'll give like a couple of examples how that has been such a powerful experience for me. uh, so, and I'll just take like 10 minutes. So basically क्या हुआ कि about 3 years ago, one Sangat uh, shared a forgiveness practice with me, and I was like कि, this sounds good, parantu Guruji, I don't want to do any like random meditation or any practice without your permission. So मैं ये सवाल लेके जैसे मन में सोचता हूँ और सो जाता हूँ, तो क्या होता है कि उसी रात को ना मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं अपने एक कॉलेज फ्रेंड की फोटो मैंने हाथ में ली होती है, और ना मैं उसको बार बार फोटो को बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू. I'm just repeating those things, I'm sorry, I'm sorry. और करते 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 ना लाइक आई थिंक मैंने 1000 बार बोल दिया होता है उसकी फोटो को, और बोलते बोलते ना उसकी फोटो गुरुजी का स्वरूप बन जाती है, एंड गुरुजी इज लाइक स्माइलिंग, एंड एकदम बहुत खुश हैं गुरुजी. तो मैं उठता हूँ यार, मुझे लगता है वाह गुरुजी ये तो बहुत ब्यूटीफुल है. एंड आई फील कि फॉर मी like it's a green light कि I can actually go ahead with the forgiveness practice. So then what happens ki I was like great. So I'll share like one or two instances uh, when I did the forgiveness practice and कैसे एकदम लाइफ में चेंजेस हुए. तो बेसिकली forgiveness practice में क्या है कि you know I'll give you first some of the experiences that happened, So मैं जब बॉस्टन से आया था, I used to live in Boston on the East Coast and now I'm in California. जब मैं बॉस्टन से आया था कैलिफोर्निया में, तो one of my previous managers से ना मेरे से हल्का सा थोड़ा झगड़ा टाइप हो गया था. तो मेरी उससे ना 3 साल से बात नहीं हुई थी, और ऐसे हुआ था कि थोड़ा फ्रिक्शन से बात खत्म हुई थी लास्ट टाइम, सो आई हैड नॉट रियली केप्ट इन टच विद हिम. तो एक दिन पर्टिकुलरली क्या हो रहा था, मैं बहुत परेशान सा जैसे होता हूँ, जैसे मन में गुस्सा होता है, एंगर होता है, हर्ट होता है, हेट्रेड होता है, राइट, ऑल दीज इमोशंस. तो आप फंक्शन नहीं कर पाते, you're just overwhelmed emotionally with anger, with all these negative thoughts, and you're not able to just operate in your day to day. You just 24/7 आपको गुस्सा ही मन में चल रहा होता है. तो मुझे लगा गुरुजी ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं कैसे इसको हैंडल करूं, इस इन थॉट्स को, दिस आर जस्ट नॉट हेल्पफुल. तो फिर क्या होता है कि सो आई आई वाज लाइक गुरुजी, आई नीड टू डू द फॉरगिवनेस प्रैक्टिस विद दिस पर्सन. तो फिर मैंने गुरुजी को इनवाइट करके गुरुजी के साथ और इस बंदे के साथ मैंने फिर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करी. आई रियली लाइक
try to forgive the person अच्छे से. अब क्या होता है कि मैं करके सो जाता हूँ. अब मेरी इससे 3 साल से बात नहीं हुई इस बंदे से. अब मैं करके सोता हूँ and 36 hours later this person emails me and he says in the email, Anshuman, I'm so sorry and I'm so grateful we got to work together, you know. तो वो मेरे से apologize कर रहा है 3 साल बाद after the practice. मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मैं तो उससे बात भी नहीं करी, ये कैसे हो गया गुरुजी. तो that was like so beautiful. I'll give you like one more example. अब क्या होता है बॉस्टन में से जब मैं मूव हुआ तो I was in a relationship or you know so I was going through a breakup और मैं जब कैलिफोर्निया आया तो मेरी उससे भी बात नहीं हुई थी. उसने my girlfriend ex girlfriend you know so she it was like not on a very good note when we last talked and उसने मुझे ब्लॉक कर दिया फोन पे you know. So एक दिन I was like too much in like pain. I was like गुरुजी क्या you know too much of a pain, all these emotions, right? Anger, hurt, all these things kind of mix together and they kind of make you in pain but and you're not able to focus on your day. तो क्या होता है कि मैं बोला गुरुजी ये तो too much हो रहा है, you know, too much to handle. So so क्या होता है कि मैं बोला गुरुजी forgiveness. So फिर I close my eyes, I invite Guruji and I do the forgiveness practice अच्छे से, you know. अब करते करते लाइक मुझे रोना भी आता है. लाइक आई सेल्डम क्राई. कभी कभी होता है ऐसा बट आई रियली क्राई आल्सो. इट वाज रियली इंटेंस. तो अब क्या होता है कि आई हैवंट टॉक टू हर इन लाइक 18 months and she's like blocked me on the phone and all that. तो क्या होता है कि अगेन 36 घंटे बाद आई एम ड्राइविंग टू अ सत्संग ऑन अ सैटरडे इन बे एरिया. अब रास्ते में मेरे को उसका फेस टाइम वीडियो कॉल आ जाता है लाइक 18 महीने बाद. आई हैवंट टॉक टू हर राइट. She calls me and I'm like, oh wow. So I pick up her call, and then we have like a 1 hour long, really nice conversation. Very like respectful. You know, we're laughing, we're wishing the best for each other. And I was like, wow, Guruji, ये तो miracle हो गया, you know. So क्या हुआ कि this happened like over and over and over again, like maybe like hundreds of times now, and I've shared in like some of the other satsangs also, you know, like absolutely like there's a life transform away as these experiences unfolded. Uh, so you know, अब क्या होता है कि 2 years ago on Guru Nanak Dev Ji's 550th birthday, 2 or 3 years ago, तो क्या होता है कि after the satsang I come home and मैं रात को ना जैसे घर पे रिक्लाइनर पे बैठ के आई वाज फॉरगिविंग समबडी इन माय फैमिली. तो फैमिली में भी हमारा कर्मा होता है एक दूसरे के साथ. सो आई वाज फॉरगिविंग समबडी और करते करते मेरे को नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ. तो उसी रात को गुरु नानक देव जी महाराज दर्शन में आते हैं और वो सोल को सिखाते हैं फॉरगिव कैसे करना है किसी को. लाइक वो निरंकार रूप में आते हैं बट आई कैन फील हिम और वो सोल को फॉरगिवनेस का मैसेजेस टीचिंग सिखाते हैं. तो अब क्या देखो मतलब द पॉइंट आई वांटेड टू शेयर कि 1 साल से इंटेंशन से आई वाज ट्राइंग टू फॉरगिव. तरीका अभी भी नहीं पता, तब भी नहीं पता था, पर आप कोशिश करते हो तो भगवान अपने आप आके आपको सही रास्ते पे लाते हैं और सही चीज सिखाते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इंटेंशन. अगर आपका भाव है किसी को माफ करने का, फॉरगिव करने का, आगे बढ़ने का, लाइफ सुधारने का अपनी और उनकी, और लव सेंड करने का, अनकंडीशनल लव, तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बाकी टेक्निक वेक्निक तो आप चाहे सही टेक्निक कर लो, बिना भाव के कुछ मेरे को लगता है होगा नहीं उससे. और आप भाव सही रखो और कोई टेक्निक मत करो, आपका सब अपने आप ही गुरुजी सब ठीक कर देते हैं. तो आई थिंक भाव का गेम है सारा. एंड with that said, I'll still share the practice the way I try to follow every day. uh,
I try to follow like the forgiveness every day. मुझे लगता है कि डेली बैकलॉग क्लियर करते जाओ. जैसे जैसे forgiveness किसी के साथ कोई फ्रिक्शन होती है, कुछ हो रहा है, साथ के साथ ही करते जाओ, राइट. क्यों हम अपना और कर्म आगे क्रिएट करें आगे के लिए किसी और के साथ अपना, कितना पुराना पहले कितना और नया क्यों बनाया, राइट. So uh, so I'll just share the practice, the way I try to follow it every day. So you close your eyes, and आप गुरुजी को इनवाइट करें बहुत प्यार से, गद्दी पे या फिर रेस्टोरेंट में या फिर जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो. गुरुजी इज आवर बेस्ट फ्रेंड. जैसे भी how we invite our best friend, our only, he's our everything. He's our eternal friend, right? So we invite Guruji in a space, in our room, in our on his gaddi. And if you can light a jot or a candle, that's also pretty good. तो आंखें बंद करके आप गुरुजी को इनवाइट करते हैं. And then the second thing you do is you also invite the person with whom you're feeling the friction, जिसके साथ आपको कुछ ना कुछ पंगा हुआ है, कुछ ना कुछ, राइट. नोक झोंक जो भी हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, सो यू इनवाइट दैट पर्सन. अब क्या करना है? अब यू हैव टू बेसिकली डू थ्री थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज you have to wish them, you have to like give them unconditional apology. आपको माफी मांगनी है उनसे, चाहे आपने कुछ गलत किया है नहीं किया आपके हिसाब से, राइट. अनकंडीशनल कि मतलब दे डोंट हैव टू से सॉरी, बट आपको सॉरी बोलना है, लाइक आपको पहला कदम लेना है. अनकंडीशनल अपॉलजी. द सेकंड थिंग इज अनकंडीशनल फॉरगिवनेस. आपको उनको माफ करना है, आपको माफी मांगनी है और फिर आपको माफ करना है. अनकंडीशनल फॉरगिवनेस. एंड देन द थर्ड थिंग इज अनकंडीशनल लव, कि आपको उनके लिए बेस्ट विशेस भेजनी है, सबसे अच्छी से अच्छी चीज उनके लिए हो. अनकंडीशनल लव. तो ये तीन चीजें हैं, ये आप अपने दिल से अच्छी तरीके से आपके हार्ट से सेंड हो उनके लिए. बेस्ट विशेस गुरुजी सामने है. एंड देन व्हाट हैपेंस कि as you do that, there is one more part which I'd like to share कि अब देखो गुरुजी इज इनफाइनाइट. गुरुजी तो अगम अगोचर, तेरा अंत ना जाना, राइट. गुरुजी तो इनफाइनाइट है, अनगिनत है. तो अब क्या है कि हमारे कर्म, सोचो अगर किसी के साथ फाइनाइट हो, किसी के साथ $50,000 के कर्म हो. सॉरी, आई एम यूजिंग द नंबर डॉलर, बट आई एम जस्ट सेइंग, लेट्स से you have 50,000 units of karmas between a person, right? Let's say your business partner, 50,000 कर्म के यूनिट्स हैं आपके उसके साथ. तो क्या है कि अगर आपकी कैपेसिटी at your current evolution, at your current status, 5 karmas per day, $5 per day, it will take you like 10,000 days to just clear the karmas. 30 साल लग जाएंगे आपको कर्म को काटने में, राइट. और वही हो रहा है हम सबके साथ, राइट. जन्मों जन्मांतर तक हम कर्म काट रहे हैं लोगों के साथ. 30 साल लग जाएंगे. 50,000 अगर आप 5 कर रहे हो रोज. तो क्या है कि अब गुरुजी तो देखो अनगिनत है, गुरुजी तो इनफाइनाइट है. गुरुजी से अगर हम हेल्प मांगते हैं ना, गुरुजी प्लीज मेरे को फॉरगिवनेस में हेल्प करिए आप. प्लीज हेल्प मी फॉरगिव दिस पर्सन. प्लीज हेल्प मी सेंड लव टू दिस पर्सन. प्लीज हेल्प मी से सॉरी टू दिस पर्सन. तो गुरुजी देखो इनफाइनाइट है. गुरुजी अगर चाहे, हमारे 5 के साथ गुरुजी 10,000 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जो चीज 30 साल लगनी है 50,000 पूरे होने में, गुरुजी उसको एक इवनिंग में इसको क्लियर कर देंगे, अगर गुरुजी चाहे तो, अगर उनकी मेहर हो. बिकॉज इट्स ऑल, ही इज इनफाइनाइट. उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि 100 है, 1000 है, बिलियन है, ट्रिलियन है, क्या है. उनके लिए तो सारा कुछ ही जीरो है इनफाइनाइट के मुकाबले ना. क्योंकि अगर आप मैथ्स में भी अगर आप डिनोमिनेटर करो, लेट्स से यू डिवाइड say 1 billion by infinite, so that division is always zero. So Guruji के relative जितना मर्जी finite number हो, that is always zero. तो गुरुजी अगर चाहें, he can multiply our
5, अगर वो 5 सच्चा है ना, दैट इज लाइक अ ट्रू भाव, अगर आप रियली अगर आप फॉरगिव कर रहे हो ना, तो जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना फॉरगिवनेस की, गुरु जी कैन मल्टीप्लाई दैट बाय लाइक अ बिग नंबर इफ ही वांट्स, एंड देन जो चीज 30 साल में होनी है वो एक इवनिंग में हो जाएगी. एंड यू नो लाइक ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, बट like I've experienced this, and I think many of people probably in the संगत might have also experienced that कि गुरुजी तो ऐसे चेंज कर देते हैं चीज, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और चीजें एकदम बदली हुई होती है. तो ये तो ऐसे होता है कि मतलब यू नो इट्स अ गुरुजी तो ऐसे एकदम लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. So yeah, so that is kind of the practice. But again, this is not about the practice, but I think it's more about your intention. It is only about your intention. अगर आप really intention में किसी को forgive करते हो, love send करते हो, उनके लिए best सोचते हो, I think that's a pretty that's the only thing. So yeah, Jai Guruji, thank you very much.